Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed the topic of evolution with an illustration, in which we have considered about 12 red beetles, and out of these 12 red beetles, we had seen three different ways in which the evolution can happen. One was the case in which the change in color was an advantage, because those beetles which were green in color were being protected by the green bushes and therefore not easily identified by the crows. Therefore, the number of green beetles increased. So initially the population had very few green beetles, but later on it happened that there was more number of green beetles instead of red. The second case was that in which there was a change in color, but instead of green, here the beetle had turned out to be blue after the sexual reproduction. Now blue as well as red beetles both were easily identified in the green bushes. So there was no advantage of color. But suddenly what happened is that an elephant foot falls on that beetle that is on the bushes, and it happened that all the red beetles got killed, whereas only blue beetles were left, and therefore blue beetle population will then suddenly increase. This is considered to be a natural selection. That is, nature has selected the organism which has to survive, and therefore the population of the beetle increased. The third condition was not related to any of the genetics. Instead, the third condition was in which the red beetles were as it is, but the green bushes were not getting proper nourishment, and therefore the beetles also did not get the proper nourishment and they were starving by food. As no food was available, the size of the beetle was very much reduced. So that was the third case. In all the three cases, it is very important to understand that how the genes or the sexual reproduction takes place in a role in evolution. Now further we are moving on to another topic, which is the acquired and inherited trait. स्टूडेंट्स, हमें ट्रेट क्या है वो तो पता ही है. ट्रेट मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक, राइट? जैसे कि हमारे पास कई सारे ट्रेट्स हैं. हमारा हेयर कलर, हमारा स्किन कलर, हमारा आई कलर, राइट? हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, सारी ये चीजें क्या है? ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स. एक्वायर्ड ट्रेट्स मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम हमारी लाइफ टाइम में अक्वायर करते हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले नहीं है, पर वो एक स्किल है जो हमने डेवलप की है. फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट इन अ सर्कस. एलिफेंट वर्किंग इन अ सर्कस इज एन एक्वायर्ड कैरेक्टर, राइट? क्योंकि सारे ही एलिफेंट सर्कस में काम करने के लिए ही नहीं बने हैं. पर अगर कोई एनिमल, अगर कोई एलिफेंट को ट्रेन किया जाए तो वो कोई कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर कर रहा है जिसकी वजह से उसे हम सर्कस में यूज कर रहे हैं, राइट? इनहेरिटेड ट्रेट मतलब क्या? कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से आगे फॉरवर्ड मिली है उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं. तो दो तरह के ट्रेट्स होते हैं जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, उन्हें एक्वायर्ड ट्रेट्स कहा जाता है. और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से डायरेक्टली मिल चुके हैं उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं. Now, when we talk about these acquired or inherited trait, we know that sexual reproducing organisms में होते हैं germ cells. germ cells मतलब reproductive cells जिनमें से गैमेट बनने वाले हैं. तो जर्म सेल्स होते हैं, और ये जर्म सेल्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? तो ये जर्म सेल्स कोई ना कोई रिप्रोडक्टिव टिश्यू में फॉर्म होते हैं. सो इन सेक्सुअली reproducing organisms, the germ cells form in the reproductive
tissues. Where is the germ cells forming and the germ cells present? They are present in the reproductive tissues. तो ये germ cells की हम बात क्यों कर रहे हैं? germ cells की हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि germ cells में से ही gametes बनते हैं और gametes ही आगे inherit होते हैं to the next generation. तो ये जो germ cells हैं उनके पास क्या होता है? DNA है जो transmit होता है to the next generation. नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के जो सेल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट नहीं होते. ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी आर नॉट इनहेरिटेड. जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है, राइट, जैसे कि स्किन के सेल्स हैं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट नहीं होने वाले. क्या इनहेरिट होने वाला है? ओनली द जीन्स दैट वर प्रेजेंट इन द गैमेट्स. जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वही. क्यों? क्योंकि आप मदर में से एक एग और फादर में से स्पर्म, इनका ही सिर्फ जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होने वाला है. बॉडी के बाकी के सेल्स का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज नहीं होने वाला. इसीलिए जो रिप्रोडक्टिव सेल्स के कैरेक्टर्स हैं वही आगे पास ऑन होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो यहाँ पे हमने प्रीवियसली बीटल्स का एग्जाम्पल पढ़ा था कि बीटल्स जो हैं वो सारे बीटल्स थर्ड केस में क्या हो रहा था कि बीटल्स वेर स्टार्विंग, खाना नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से बीटल्स का साइज बहुत ही कम हो चुका था. तो क्या ये एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है? नो, this is not a reproductive character. Beetles were smaller in size just because low amount of food that was available. Okay, so we will mention over here that the size of beetles was small due to starvation, right? And it is not a genetic character. It is not a genetic character. अगर हमारा जो वेट है वो एक जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है. हमारा वेट जो है that depends upon what we eat and how much we eat in a day. राइट, तो हमारे पेरेंट्स शायद फैट हो सकते हैं पर हम स्किनी या थिन भी हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि फैट्स या वेट को ट्रांसफर करना वो कोई जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो यहाँ पे थर्ड केस में जो बीटल्स थे वो इसीलिए इतने छोटे हो गए क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला. इसका मतलब ये नहीं है कि बीटल्स के पेरेंट्स जो है वो भी पतले थे, राइट. Even if this starvation continues for 2 to 3 generations, then also this character is not going to be inherited. So the weight of beetles is not an inherited character even over जनरेशंस. मतलब एक से दूसरी जनरेशन भी अगर जाए और दूसरी जनरेशन में भी बीटल्स अगर थिन है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? लैक ऑफ फूड. इट इज नॉट ड्यू टू एनी जेनेटिक कैरेक्टर, एनी रिप्रोडक्टिव सेल गेटिंग ट्रांसफर. ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल इसीलिए मेंशन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेट जो है वो कैसा कैरेक्टर है? एक्वायर्ड है, इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं है. कलर जो था बीटल्स का वो इनहेरिटेड कैरेक्टर था पर बीटल्स का जो वेट है वो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है और एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो आगे की जनरेशन में पास ऑन नहीं होते. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. In a population of mice, if allowed to breed, all the mice of next generation will have
tails as expected, right? क्या हम कर रहे हैं कि हमने एक माइस की पॉपुलेशन ले ली है, मान लीजिए 10 माइस हमने ले लिए। अब ये जो 10 माइस हैं सबके पास टेल है। अगर हम इन्हें अलाउ करते हैं टू ब्रीड, तो ब्रीड करने पर इनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ये नेक्स्ट जनरेशन में भी सारे ही माइस के पास क्या होगा, टेल होगा। वो तो ऑब्वियस ही है क्योंकि टेल्ड पेरेंट्स हैं, तो टेल्ड जो है उनके बच्चे जो होंगे वो भी टेल वाले ही होंगे, राइट। पर अब हम यहाँ पे क्या करें कि वी आर सर्जिकली कटिंग द टेल्स ऑफ दिस माइस। इफ वी सर्जिकली कट the tails of mice and then allow to interbreed, will next generation have tail? क्या किया हमने, सर्जिकली माइस जो थे उनकी टेल्स को कट कर दिया। टेल्स को कट कर देने के बाद हमने उन्हें अलाउ किया अगेन टू रिप्रोड्यूस। तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन अब रिप्रोडक्शन के बाद आएगी, क्या उनमें टेल्स होंगी? ऑब्वियसली यस, यस। दिस इंडिकेट्स व्हाट, दैट टेल डेवलपमेंट इज अ जेनेटिक कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि टेललेस माइस के बच्चे वापस टेल बिना आएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेल डेवलप करना एक जेनेटिक, एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर था जो हर एक माइस जेनेटिकली डेवलप करेगा ही, इवन इफ द पेरेंट इज नॉट हैविंग अ टेल, राइट। अगर किसी पेरेंट का एक हाथ नहीं है एंड आफ्टर रिप्रोडक्शन उनका जो बेबी है वो कंप्लीटली दोनों हाथ वाला ही डेवलप होगा, राइट। इट डजंट मीन कि पेरेंट में एक हाथ नहीं है तो बेबी में भी एक हाथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। व्हाई? बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स इज अ जेनेटिक ट्रेट, राइट। इट इज नॉट एन एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आगे पास ऑन नहीं होते। जैसे कि टेल कट हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा नहीं होगा कि टेल बिना के माइस आएंगे, वो एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है, इसीलिए वो तो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा ही। सो हियर इट शोज दैट ओनली कैरेक्टर्स ऑफ reproductive cell pass on to the next generation। तो सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, और रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब गैमेट्स जो होंगे, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे। इसीलिए यहाँ पे एक्वायर्ड का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारे लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, जैसे कि कुकिंग। कुकिंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमने सीखा हुआ है, इसलिए हम उसे कर सकते हैं। बट कैन वी पास इट ऑन टू अवर चिल्ड्रन? नो। हमारे जो चिल्ड्रन होंगे वो बाय बर्न कुक नहीं बन पाएंगे, उन्हें भी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। पर आपका आई कलर या आपका हेयर कलर एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है, इसीलिए वो आपके पेरेंट्स से आगे पास ऑन होगा। तो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। In the next class we will begin with the next topic, that is the speciation.